after undergoing this rapid revision, correct, let's march towards completing the standard one by one. Yes. Today we'll start with deferred taxation. Now, deferred taxation, I suppose you are done. You might have done it. I can share some, in fact, I can gain some knowledge from you. I'll tell you one thing. I really like to know from someone about my subject. Bolo. Don't say I have not done anything. Or you just initially started talking much more, you're saying, I don't know anything. Because you have been involved in some CFS area, so that's, in fact, you might have suffered a deferred tax a lot. Huh? Deferred tax was the difference basically between, so at least if you ask me practically what I was doing. Or you copy the method, what they've done. Just, I'll do that. No. You know it. Yeah, so then I used to have a team and all are there to help you out. But we were doing it manually. So it was the difference between the depreciation, which was calculated initially as per Companies Act. And then you get depreciation as per income tax, because in income tax, only depreciation which is calculated as per the income tax act is allowed. So उन दोनों का difference, उसके ऊपर deferred tax का rate. So that deferred tax rate. Deferred tax का rate नहीं, income tax का rate. 29% would change हो जाएगा हर साल. ठीक है, हाँ. And वो rate लगाकर हम we used to determine whether it's a deferred tax asset or a deferred tax liability, depending on whether the book profit is more than the income tax profit. Or vice versa. अच्छा ठीक. Anybody else like to share something on deferred tax? In fact, deferred taxation is what? AS 22 or Ind AS 12 talks about deferred taxation. See, through very simple example, I can explain you the entire chapter only. One example. Suppose my net profit from the P&L account is 1,000 rupees. Correct? 1,000 रुपये net profit है मेरा. And suppose there is an expenditure disallowed by the ITO, which will allow in the next year, maybe 43B. Will allow in the next year, not now. They will add back in my income. Suppose add back any type of expenditure in 43B. Correct? He will allow next year, not, he won't allow me. I have debited to P&L. He will add back. Correct? Suppose that is 100 rupees. One more disallowable amount is there, and that is nothing but penalty. Penalty he never allows. He'll add back, but he never allows in future. जिसका मतलब जो ऐड नहीं किया वो अलाउ है, ये दो अलाउ नहीं किया है, पेनल्टी है, मान लीजिए दंड है, और दंड बाद में कभी अलाउ नहीं होगा, वो है 200 रुपये. This means my income is 1,300. इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम. क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम, है ना? Now I'll pay tax on that. Tax is 40%. What is 40% of 1,300? Tell me. 40% 1,300. How much? 520. 520. This is known as current tax. What is current tax? Tax on taxable income. अभी का tax जो government को देना है. Government tax is 520. Is this tax your tax? This tax is government tax, income tax tax. AS के मुताबिक ये टैक्स नहीं है. क्यों सर? AS बोलता है ये टैक्स तो है मेरा, मैं और भी कुछ ऐड लेस करूंगा तो मेरा टैक्स बनेगा. Sales as per GST is different, AS is different. बराबर? Because of different laws. तो tax as per income tax is this. For accounts, it is not this. And once you know what is tax as per account, your chapter is over. For accounts, the tax is this plus and minus one more thing. यानी करंट टैक्स तो है अपना टैक्स, बिकॉज अब पे करना है, बट एक अमाउंट और भी है जो पेंडिंग रहेगा. दीज टू डिसअलाउंसेस, करेक्ट, ये डिसअलाउ हुआ, आगे अलाउ होगा, कभी अलाउ नहीं होगा, तुम रिकवर कर सकते हो टैक्स. ये हो गया परमानेंट डिफरेंस. और ये क्या है सर? ये अगले बार तुमको 100 रुपये का डिडक्शन मिलेगा.
तब डिडक्शन मिलेगा, तब तुमको कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो आज तो ज्यादा भर दिया सर मैंने, यस, यू प्रीपेड टैक्सेस एंड यू कैन रिकवर टैक्स टुमारो एंड देयर इज एन एसेट क्रिएटेड फॉर यू। तो 40% ऑफ दिस इफेक्ट, 40 rupees is deferred tax asset for you. It will reverse in the next year when he will allow you. तो एक सेकेंड, करंट टैक्स इज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये क्या है सर? इसको परमानेंट डिफरेंस कहते हैं। ये क्या है सर? टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। टाइमिंग डिफरेंस आर दोज डिफरेंसेस which originate in one period and reverse subsequently. And permanent difference are those differences which originate but never reverses. Hence, you can't calculate any deferred tax on that. Whatever is been added and you pay tax, pay and forget. You can't recover from the ITU. इस पे deferred tax नहीं निकालने। इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आता है वही आपका डिफर्ड टैक्स क्रिएट करेगा। और दो तरह का डिफरेंस होता है, परमानेंट और टाइमिंग। व्हाट इज परमानेंट? ही डिसअलाउज यू बट नेवर अलाउज यू। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम ही exempt you. Next year, will he disallow it? No. Or if he exempt, will companies act exempted? No. The difference remain forever. इस पर जो भी करंट टैक्स रहेगा वही है, डिफर्ड टैक्स निकाल लेगा नहीं। You can't recover tax from government, neither government can recover from you, vice versa. But on this I can recover tax from government. इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में जो गैप होता है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो दो तरह के टैक्स होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस नो डिफर्ड टैक्स, टाइमिंग डिफरेंस कैलकुलेट डिफर्ड टैक्स। इसकी एंट्री क्या आएगी सर? 520 की। ये करंट टैक्स है, सिंपल। कैश क्रेडिट 520, पीएनएल डेबिट, टैक्स डेबिट टू पीएनएल। ये टैक्स है आपका, ये भी आपका टैक्स है, लेकिन रिकवर करना है टैक्स आपको। आपने ज्यादा पैसा भरा, इसकी क्या एंट्री आएगी? लॉजिकली डीटीए डेबिट होगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। एसेट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। एक्चुअली आपका एक्सपेंडिचर है ही नहीं, लेस कर दिया, देखो डेट। नेक्स्ट ईयर सर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जब ये तुम आपको लेस करके देगा, दैट टाइम यू विल रिवर्स एंट्री, पीएनएल डेबिट टू डीटीए, रिकवर द टैक्स। करेक्ट? अच्छा, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये देखो, टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम, इन दोनों का डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। इस डिफरेंस को दो में डिवाइड करो, टाइमिंग डिफरेंस, यस, और दूसरा क्या है बोलो मेरे को? परमानेंट डिफरेंस, यस। परमानेंट डिफरेंस का कुछ भी नहीं करना है, भूल जाओ। टाइमिंग डिफरेंस का करना है। दो चीजें आएगी, या तो डीटीए क्रिएट होगा या तो डीटीएल क्रिएट होगा। ये दोनों क्या है सर? ये टाइमिंग डिफरेंस का टैक्स इफेक्ट है। ये दोनों के दोनों टाइमिंग डिफरेंस का टैक्स रेट इनटू टाइमिंग डिफरेंस है। डीटीए में दो चीज होती है, पहले वो अराइज होता है, बाद में रिवर्स होता है। डीटीएल में दो होता है, अराइज होता है, रिवर्स होता है। करेक्ट? व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम क्या होता है? इट्स इनकम एज पर टैक्स एक्ट। अकाउंटिंग इनकम क्या होता है? इनकम एज पर पीएनएल। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? which originate in one period and reverse subsequently। होना ही चाहिए रिवर्स, तो ही टाइमिंग है वो। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? ये वो डिफरेंस है अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में जो ओरिजिनेट तो होता है बट नेवर रिवर्सेस। डीटीए क्या होता है? टैक्स इफेक्ट on timing difference, yes. DTA is
tax saving, tax asset to be recovered from income tax. What's DTL? Tax effect on timing difference. And further, DTL is a tax liability which Income Tax Act will recover from the entity. Copy this summary. So India's Huh? where? Index 12. Sir, DTA है कि DTL है? Depends. Can you check out? He is adding today. You're paying more taxes today, current taxes. Paying more. Tomorrow you can recover from him. DTA. अगर वो allow कर रहा है ज़्यादा, next year disallow करेगा तो you are paying less taxes today. You have to create DTL now. Liability you have to create. P&L debit to DTL. उतना टैक्स आपने नहीं भरा, जितना नहीं भरा तो लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर भरना पड़ेगा. जब भरोगे तब रिवर्स कर देना. रिवर्सल मीन्स यू हैव रिकवर्ड, ही हैज रिकवर्ड, यू हैव रिकवर्ड. करेक्ट? Friends, timing difference are those differences which originate in one period and reverse subsequently. Permanent difference never reverses. It's permanent. Hence, you can't calculate deferred tax. Current tax is enough. Correct? No deferred. No deferred. Actually, what is deferred tax? That much you paid less current tax or more current tax. Nothing else. Here you paid more. Hence, you are creating a DTA. If you paid less, you should create DTL. Correct? You had a ball in the hand. Ball. Small ball. Rubber ball. Correct? You throw it there. Due to the rule of gravity, what will happen? Ball will once again come down. This is timing difference. Arise, a reverse. Permanent. Again take the ball. Again throw it up. But a mischievous monkey is sitting. Caught the ball and ran away. Never come back. Permanent difference. Arises, but never reverses.
Correct? Now, these themes and concepts are enough to make you understand how to handle this chapter. Chapter will be very easy. Correct? When the basic concepts are clear, correct, then in that case, the problems can dance in front of you. You take any problem in institute. You use my concept of add and less. Let's tackle a couple of problems and see how can we solve problems on deferred tax. See here. Suppose, for example, you have a list of items given. नेट प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो आप टैक्सेबल इनकम भी नहीं निकाल सकते, टैक्सेबल इनकम नहीं निकाल सकते तो आप करंट टैक्स भी नहीं निकाल सकते, बट दे आर इंटरेस्टेड इन टाइमिंग डिफरेंस. ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स. नंबर 1 एडजस्टमेंट है इनकम के अंदर. जीएसटी डिसअलाउड. व्हाई सर? लेट पेमेंट कितना? 4,000. Second, agriculture income 2,000. Third, depreciation as per Companies Act 12,000. Income Tax Act 18,000. Provision for gratuity 6,000 and gratuity paid is 4,000. Fifth, provision for doubtful debt is 1,000. Tax rate 30%. Let's calculate the timing difference in the current year. Correct? You can't calculate net profit and taxable income and current tax. Only the deferred tax portion. GST is disallowed for the late payment. Do you agree with me? Income tax officer will add back this to your income, and you're bound to pay more current taxes. Hence, there is more payment of tax. You can recover tomorrow. It creates DTA. So it's timing difference, and will create further DTA. Agreed, everyone? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. कंपनीज एक्ट में इनकम है लेकिन आईटीओ ने माना नहीं है. ये डिफरेंस पैदा हुआ, ये पैदा कभी रिवर्स नहीं होगा बाद में, ये परमानेंट डिफरेंस है. वेरी सिंपल. कंपनीज एक्ट का डिप्रिसिएशन विल ऐड बैक 18,000. allow you more 6,000 negative amount. It creates timing difference, further DTL, because he is allowing you more today. Tomorrow he will disallow you. Correct? Gratuity provision, he will disallow it. He will only allow 4,000 rupees, which is paid. So I can take net effect of 2,000. He is disallowing you 2,000 more. Tomorrow he will allow you ultimately 2,000. That creates timing differences, DTA. Provision for doubtful debt. This doubtful debt, we are providing for a bad debt. Has a bad debt took place? No. So he will disallow it. But tomorrow he will allow if that fellow will pay the amount. If the person will not pay the amount, bad debt, तब तुमको अलाउ करेगा. कोई ऐसा भी तो बोलेगा सर 1,000 प्रोवाइड किया, एक्सेस प्रोवाइड किया आपने, वो पैसा देगा फिर भी तुमने डर से प्रोवाइड किया है, तो परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा, फिर अलाउ ही नहीं होगा आपको. हो भी सकता है परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग भी हो सकता है. व्हाट इज टाइमिंग? टुडे ही विल डिसअलाउ यू, टुमारो ही विल अलाउ व्हेनेवर एक्चुअल बैड डेट टेक प्लेस. आई विल अज्यूम दैट. करेक्ट? टाइमिंग, फर्दर डीटीए. ए मतलब सब ऐड किया उसने, एल मतलब उसे लेस किया आज. चलो तो स्टेटमेंट बनाते हैं. पहला है जीएसटी 4,000 रुपया, डेफर्ड टैक्स, करेक्ट, एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4,000 रुपया, टैक्स है 30%. 4,000 रुपया आपका टाइमिंग डिफरेंस है ना. अच्छा, 30% कितना होता है? 1,200 रुपया, डीटीए हो गए. सेकेंड, एग्रीकल्चर इनकम 2,000, परमानेंट डिफरेंस, न डीटी आएगा न डीटी आएगा. थर्ड, डेप्रिसिएशन, कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट
कंपनीज एक्ट का 12,000 है जो डिसअलाउ करेगा वो, और ITO का 18,000, ही विल अलाउ यू। एक्सेस 6,000 नेगेटिव, इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस गिव राइज टू DTL। नेगेटिव है देखो ये 30%, 1,800 रुपया DTL। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये पुराना डिप्रिसिएशन हो, पहले प्लस था अभी माइनस हो रहा हो, so that is reversal of DTA then, correct? But mostly we assume nothing is given on the face, it should be arise, not reverse. Fourth, provision for gratuity, 6,000 disallowed, but 4,000 allowed, paid allowed, net 2,000 disallowed, timing difference, कभी नहीं कभी allow करेगा। Credits DTA of 30%, 600 rupees. Fifth, provision for doubtful debt. Assume it go bad debt in next 2 years, and accordingly we can treat them as add back. 30%, 300 rupees. Summation of this is 100, 1,800. Opening balance कुछ भी नहीं है इसका, होना चाहिए. Net effect is what? Net effect is nothing but 300 net DTA. These are some works. Correct? Net DTA is how much? 300. How you got it? Summation of deferred tax arising net off. सर अगर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा ना पुराना, अब तो रिवर्स नहीं हुआ, वो उस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ DTA इज 1,000, DTL इज 0, तो इसमें 1,000 और ऐड हो जाएगा, ये 2,200 हो जाएगा -800। लेकिन PNL में जो इफेक्ट जाएगा PNL में, इन दोनों का डिफरेंस ही जाएगा, ओपनिंग बैलेंस PNL में नहीं जाएगा। करेक्ट? फ्रेश जो है ये ना, ओपनिंग तो अब कैरी होगा अब आपका। फिर दिस इज द पोजीशन ऑफ डिफर्ड टैक्स एज ऑन टुडे। कॉपी कर लो, एकदम बेसिक इलस्ट्रेशन है आपके लिए। The deferred tax should be solved in such a manner, correct? Taking the timing difference and permanent difference. Now, how Ind AS people solve it? Deferred taxation. वो ऐसा नहीं करते। करंट टैक्स बराबर है, टैक्सेबल इनकम। डिफर्ड टैक्स ऐसे नहीं निकालते। इनफैक्ट दे गो बाय द डिफरेंस ऑफ टैक्स बेस एंड अकाउंट कैरिंग अमाउंट। इन अकाउंट्स में उस एसेट का वैल्यू क्या है, टैक्स में एसेट का वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस से वो लोग डिफरेंट टैक्स निकालते हैं। आंसर दोनों का एक ही आता है, करेक्ट? दोनों का एक ही आंसर आता है। एक सेकेंड। Assuming that I have a machinery of 1 lakh, and assuming that the depreciation as per Companies Act in the first year is 30,000, second year the Companies Act depreciation is 30,000, but in addition to this there is an impairment loss of 10,000 because the recoverable value has fallen below the carrying amount. Additional charge as a depreciation substitute, that is impairment loss. What about ITO? ITO is allowing a depreciation out of 1 lakh. The asset can be further carried forward. Let's say 20,000 rupees. Second year, 25,000 rupees. Correct? Third year, बस 2 years का डेटा दे रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ what will be your answer as per AS and what will be your answer as per Ind AS, let's check out. Answer remains same, but how to present it, let's see. Data is there on the board. पहला मैं AS करता हूँ जो बहुत easy है। पहले अकाउंटिंग जनरेट करूँगा मैं।
नेट प्रॉफिट से मतलब नहीं, मुझे इस टाइमिंग डिफरेंस से मतलब है। एज 22 में क्या करना चाहिए? करेक्ट। सुन, ईयर 1 कंपनीज एट 30,000, IT 20,000, डेप्रिसिएशन इतना अलाउ करेगा, इतना डिसअलाउ करेगा। कितना डिसअलाउ करेगा? 10,000। ऐड किया ज्यादा टैक्स भरा आपने, क्रेडिट DTA, टाइमिंग डिफरेंस पे DTA निकालो, तो टैक्स इज 30%, DTA विल बी 3,000। फ्रेश DTA है आपका। ईयर 2 depreciation as per Companies Act 30,000, he will disallow it. He will also disallow the impairment loss. He won't allow that. In fact, he will disallow 40,000. But don't worry, entire 1 lakh will be allowed by both of them today or tomorrow. That's what the thing is. He'll only allow his 25,000 depreciation as per Income Tax Act. And remaining is 15,000. 15 na? And tax on that will be 4,500 DTA. You are yet to recover this much and this much from the ITO. Cumulative DTA is 7,500. आपके बैलेंस शीट में 7,500 का DTA पड़ा रहेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में क्या होगा? Yet to reverse. अभी होगा, इसके आगे रिवर्स होगा। अब now start allowing you more. He will diminish the amount. But what about Ind AS now? Let's see. As per Ind AS 12, the scenario is different. We don't go by this method. Method is completely different. We go by the balance sheet method. Balance sheet? हाँ, हम लोग इसका बैलेंस शीट वैल्यू निकालते हैं। मशीनरी कितने का? 1 लाख का है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? What is the value of the machinery in Companies Act and the value of machinery in Income Tax Act? They go by the P&L approach, they go by the balance sheet approach. हर एक डिफरेंस का वो लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। Now you have the machinery costing how much? Machinery, not depreciation. 1 lakh rupees. Here also 1 lakh. This is known as carrying amount of asset. This is known as tax base of asset. Tax base or carrying amount. Less depreciation for year 1. 30,000 depreciation चार्ज किया, यहाँ पे 20,000 चार्ज किया। कितना आया आंसर? 70,000 है। यहाँ पर कितना आंसर आया? 80,000 आया। इनकम टैक्स में इसको क्या बोलोगे? कैरिंग अमाउंट क्या है? बैलेंस। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज 70, टैक्स बेसिस 80। मीन्स व्हाट? आने वाले वक्त में ये एसेट आपको इतना कारोबार देगा, इस कारोबार पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, इस अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, अक्रूवल। लेकिन तुमको आने वाले वक्त में इतना डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपका डेप्रिसिएशन आपको बेनिफिट नहीं देता है, उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट देता है। तो आने वाले वक्त में इतना अगर आपको इनकम क्रिएट होगा, कमाई होगी इससे, तो कमाई पे टैक्स भरना पड़ेगा और इतना आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ज्यादा है देखो इससे, तो आपको आज उसका DTA क्रिएट करना पड़ेगा। ये दोनों का डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है 10,000 रुपये। उस पर डिफर टैक्स आएगा आपका एसेट, और वो है 30%, 3,000। डेप्रिसिएशन नहीं लेने का। नाउ अगेन नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 30 and 25, but here 10,000 additional impairment loss. If you can see, 30 is remaining and here 65 is remaining, 55 is remaining. Now take the difference, 30 minus 55, correct? 30 minus 55 कितना आता है देखो? 25,000. 30% on that, 7,500. यानी cumulatively your DTA is 75. Same answer देखो यहाँ पे. The difference will be fresh DTA for you 4,500. In the Ind AS they go by the tax base. Tax base को tax base कहते हैं. इसको क्या कहते हैं सर? कैरिंग अमाउंट कहते हैं। उसका डिफरेंस आपका डिफर टैक्स आता है। अगर टैक्स बेस ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, इट क्रिएट्स पॉजिटिव टाइमिंग टेम्परेरी डिफरेंस एंड देन DTA।
पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर? कॉपी कर लो। टैक्स हॉलिडे कंपनी, टैक्स हॉलिडे, दे डोंट पे टैक्स, तो उसका करंट टैक्स तो आएगा ही नहीं, डिफरेंट टैक्स आएगा टैक्स हॉलिडे का। अ टैक्स हॉलिडे कंपनी 10 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे, उसको टैक्स भरना ही नहीं है, इसके बाद भरना है, इसके बाद भरना है। करंट टैक्स कितना रहेगा उसका? करंट टैक्स टैक्सेबल इनकम जीरो, देयर विल बी नो टैक्स, करंट टैक्स जीरो, डिफरेंट टैक्स रहेगा। सर करंट टैक्स नहीं रहेगा तो डिफरेंट टैक्स भी नहीं रहेगा, जब टैक्स भरेगा ही नहीं तो अलावा डिसअलाउंस भी नहीं होगा, डिफरेंट टैक्स विल बी देयर। देखो बस सेल डिसअलाउड 10, नेक्स्ट से अलाउड, रिवर्स हो गया, हाँ करंट टैक्स तो जीरो ही है। तो एक्ट क्या बोलता है? ड्यूरिंग द करंट टैक्स जीरो पीरियड द डिफरेंट टैक्स कैन बी इग्नोर्ड, नो टाइमिंग डिफरेंस, नो डिफरेंट, फॉरगेटिंग। यानी इसका डिफरेंट टैक्स आएगा 10 का, 50% टैक्स 5, बिकॉज अराइज रिवर्स का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनी करंट टैक्स। So you can do the arise reverse only after the tax holiday period is over. नहीं, it tax holiday is not over, you are enjoying the holiday, during that period whatever different tax arises and then reverses, that should be ignored, because there is no question of calling you, adding back and then deducting, because there is no current tax. But if the deferred tax arises during the holiday period continuously for a depreciation, retirement benefit, long term, a reversing, इस पीरियड के बाद का जो रिवर्सल होगा उसका डिफरेंट टैक्स आएगा ना आपका। फिर जो भी अराइज रिवर्स चल रहा है, सपोज 7 साल तक डिप्रिसिएशन डिसअलाउ किया, अब अलाउ करना शुरू करेगा तो ये अलाउंस में आ जाओगे आप, वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं निकालेगा, प्रोस्पेक्टिव निकालेगा। तो एक्ट क्या बोलता हूं मैं, हॉलिडे पीरियड के अंदर जो डिफर्ड टैक्स होते हैं ना, इसके अंदर वो आपको नेट करने पड़ेंगे। नेट मीन्स, नेट का मतलब होता है अराइज और रिवर्स को सेट ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। और जो एक्सेस बच जाता है, जो यहां से रिवर्स होगा, उसका ही डिफर्ड टैक्स आपको निकालना है। मतलब जैसे कि मान लो अराइज इज 10, 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 अराइज 10, अराइज 10, ये आपने पहले प्रेडिक्ट कर लिया क्योंकि मशीनरी है, उसका डेप्रिसिएशन आपको पहले से पता होता है। एंड रिवर्स इज 5, 5, 5, 5, it will go on number of years till 70 get over। हाँ 70 खत्म होने के लिए और टाइम लगेगा। तो एक्ट क्या बोलता है बोलो मैं, जो हॉलिडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है ना, इसका डिफर्ड टैक्स आपको नहीं निकालना है, वो सेट ऑफ कर सकते हैं आप, इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं आप। यदि 15 है ना, तो 15 में से 10 या सेट ऑफ होगा, 5 या सेट ऑफ होगा, ये 5 जो बचा उसका डिफर्ड टैक्स निकालना आपने कहा। दैट विल स्टार्ट रिवर्सिंग फ्रॉम द 11th ईयर, करेक्ट। दैट विल स्टार्ट रिवर्सिंग फ्रॉम विच ईयर? 11th ईयर। इसका डिफर्ड टैक्स आएगा, इसका नहीं आएगा। और सर 10 10 10 10 10 10 सब अराइज ही हो रहा है यहां तक तो, और फिर और रिवर्स यहां से होगा तो सबका डिफर्ड टैक्स आएगा, क्योंकि कोई चीज रिवर्स नहीं हो रही है। यानी अगर हॉलिडे पीरियड में अराइज और रिवर्स हो रहा है, वो सेट ऑफ कर सकते हैं आप हॉलिडे पीरियड, उसकी बात वाला नहीं। और अगर हॉलिडे पीरियड है ही नहीं, नॉर्मल सम है, तो हर अराइज का डिफर्ड टैक्स अलग अलग आएगा और फिर रिवर्स होता रहेगा, फिर नॉर्मली सम होगा। लेकिन एक हॉलिडे पीरियड में एग्जेम्पशन दिया जाता है, ड्यूरिंग द हॉलिडे पीरियड वॉट एवर हैव अराइजन and whatever reverse is within holiday period, they can be netted off, and the balance unreversed portion which start reversing 11th year, उसका डिफरेंट टैक्स निकालना पड़ेगा। वरना अगर ये हॉलिडे का सम नहीं होता ना,
मैं सबका डिफरेंट टैक्स निकाल कर क्यूमुलेटिव लेकर फिर रिवर्स करना शुरू, एक एक ईयर का अलग अलग निकाला पड़ता, बट हियर यू कैन नेट ऑफ एज अ पैकेज विद इन हॉलिडे पीरियड। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपके एग्जाम में 3 बार आकर गया है आपके एग्जाम में, इसका मतलब ये हो गया है कि मेरा डिफरेंट टैक्स कितना रहेगा, मेरा डिफरेंट टैक्स पहले ईयर का कितना रहेगा, पहले ईयर का रहेगा 10 अराइज हुआ, हॉलिडे पीरियड में 15 रिवर्स हो रहा है, इसमें से 10 रिवर्स कर सकता हूँ, 1 रुपया भी नहीं आएगा। सेकेंड ईयर में 10 अराइज हुआ, हॉलिडे पीरियड में 5 रिवर्स हो रहा है, मैं 5 का डिफरेंट टैक्स निकालूंगा, ये टाइमिंग डिफरेंस है, डिफरेंट टैक्स सपोज 50% है, 2.5 रुपये डिफरेंट टैक्स आएगा। थर्ड ईयर में कितना आएगा, थर्ड ईयर में पूरा आएगा इस सब पे, फिर इसके बाद रिवर्स हो रहा है वो, जितना वो हॉलिडे पीरियड तक रिवर्स होगा उतना नेट ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। और हॉलिडे पीरियड का सब नहीं होता तो सबका डिफरेंट अलग अलग आता, फिर क्यूमुलेटिव कैरी होता, फिर रिवर्स होता, वो अलग चीज होती। ईच ईयर इज देयर सेपरेट ईयर फॉर यू, बट अगर हॉलिडे पीरियड है तो आप पैचअप कर सकते, सेट ऑफ कर सकते, सेट ऑफ करके जो बचेगा। तो आपके मॉडल में बहुत फेमस क्वेश्चन है एकदम यही, फर्क इतना कि फिगर्स थोड़ा कम जा रहा है, उसमें फिगर्स कुछ और है, नहीं ऐसा ही सेट ऑफ कर रहे हैं, उसमें कुछ मे बी फर्स्ट 1 2 3 4 कुछ ऑड फिगर ही एकदम, 240 arises in the first year, 290 arise in second year, और वो बोलता है 10 will reverse from this year till the end, whatever number of years left है, ये 500 जो भी रुपया है वो 10 करके रिवर्स होगा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना रहेगा, 240 अराइजिंग, टाइमिंग डिफरेंस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 80 रुपये में नेट कर सकता हूँ। हाँ, तो बचेगा ये 160, रिवर्स हो गया, हॉलिडे पीरियड, ये हॉलिडे पीरियड का है दोनों, नेट बचा आपका। और सपोज टैक्स रेट आपका 30% है, हाँ, तो डिफरेंट टैक्स कितना आएगा, डिफरेंट टैक्स 30% आएगा 48 आई सपोज। ईयर 2 290, कुछ भी नहीं बचा हॉलिडे पीरियड में, सब उसने खा लिया, 290 पे डिफरेंट टैक्स आएगा आपको, करेक्ट। 290 to 30%, how much it will be? 87 cumulative 135, total deferred tax 135। थर्ड ईयर में कुछ अराइज ही नहीं होगा और रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी, इधर कुछ भी नहीं, एक 135 कैरी होता रहेगा, 135 रिवर्स हो चुका है, 135 यहां से फिर रिवर्स होना शुरू होगा when you start paying current taxes. In short, the moral of the story is normally you calculate every year's deferred tax arise reverse, but in holiday period तो holiday का जो पीरियड होता है उसमें arise reverse को नेट कर सकते हैं आप FIFO मेथड से। FIFO में ये पूरा पहले इससे माइनस करने का, फिर बचेगा इससे माइनस करने का। एग्रीड? कॉपी कर लो ये।